Hello dear students, today I am going to start a new chapter in Organization of Commerce and Management Standard 11, chapter number 4, session number 1 of Communication, E-Commerce and Outsourcing. You have knowledge about this communication, a basic knowledge. Also, you passed through some of the process in last 2 or 3 years related to the e-commerce because it is at the highest point at present, okay, and we are using that services of the e-commerce from so many years. So आपको इसका knowledge होगा, लेकिन आपको अब आज मीन्स इस चैप्टर में आपको मालूम पड़ेगा कि what is the main thing about this e-commerce and lastly the outsourcing. ये पूरा आपके लिए commercial way से नया concept है. So communication, e-commerce and outsourcing. Communication includes different things. Before starting, I just want to make some information related. What will you learn in this chapter? That is pre-cap, meaning and definition of the communication with its short process. उसके बाद internet, already you are using the internet, you have the knowledge, but on the basis of the new ideology, on the basis of the particular base, right, there must be a requirement of this meaning for the commercial way. Okay, और कैसे यूज होता है वो भी हम देखेंगे. E-commerce, right, under that meaning scope, some of the tools are required. Okay, how to implementation that e-commerce through the tools, वो आएगा. उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं. ओके, मुझे मालूम है, आपको ये सब कुछ मालूम है, आपको लगेगा, लेकिन वी आर इन द रूट्स ऑफ दैट ई-कॉमर्स और इट विल बी देयर इन योर सिलेबस हियर इन दिस चैप्टर. सो मोड्स ऑफ पेमेंट क्या है, आप पेमेंट करते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट करते हो, लेकिन एक्जैक्टली आज आपको मालूम पड़ेगा ये सब कैसे होता है. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर ट्रांजेक्शंस आर सेफ और नॉट, वो भी मालूम पड़ेगा, राइट. आउटसोर्सिंग, द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, इट इज कमिंग अंडर द ई-कॉमर्स. उसमें आएगा बीपीओ एंड केपीओ, सबका जो स्कोप और उसके इन्फॉर्मेशन है वो हम देखेंगे. तो लेट्स मूव टू द बेसिक एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ communication. So nowadays the competition in business has increased, as you know. Without competition, business will not run. Okay, in chapter 5, 6, 7, 8 we will discuss about that one, how to sell the product in the market, how to use the different type of the things. Okay, if you want to start the business, कैसे आप ये business कर सकते हो, इसकी information होगी. लेकिन अभी के लिए याद रखो कि competition is there in every business. More or less competition ratio is there, more or less proportion of the competition is there. In this age of competition, for the development of business, the factor like human resources have been important or have been become important. So when you are in the market, you have to face the problem of this competition. This is not a problem. This is the opportunity to give best to your customers, to your clients. If you are in a business, give your best. If competitors are not there, you will give मे बी समटाइम्स लोअर क्वालिटी गुड्स. ये सिर्फ मैं बताता हूँ, बाकी पोजीशन की अलग ही होती है. लेकिन इफ कंपटीशन इज देयर, कॉम्पिटिटर्स आर देयर, यू आर ट्राइंग टू ऑलवेज गिव द बेस्ट टू योर कस्टमर्स. तो यहाँ की एज में आपको आपका डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, आपके बिजनेस का. सबसे ज़्यादा फैक्टर जो अफेक्ट करेगा, द फैक्टर लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज हैव बिकम इम्पोर्टेंट. यू नो दैट वन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीनियर. ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उससे ज़्यादा कहीं भी है, लेकिन हम ये जो है लेबर, मैन पावर, राइट, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा. वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर. सो एलिमेंट्स लाइक हाई क्वालिटी गुड्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, लो कॉस्ट से प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, राइट. प्रॉम्प्ट यानी त्वरित, जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा, वरना अगर आप उसको एक दिन बाद बुलाओगे तो मे बी ही विल मूव टू द अदर वन, क्योंकि उसको वहाँ से प्रॉम्प्टली मिल जाएगा गुड्स और आपका ट्रांसपोर्टेशन कम है, आप जल्दी से मंगवा नहीं सकते. तो मोस्टली यू हैव टू लॉस योर कस्टमर. सो दैट प्रॉम्प्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ऑल्सो बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स, that all have become important in business. So which important elements are there under this point? आपको आपके कस्टमर को लो कॉस्ट से अच्छा क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड गुड्स देना पड़ेगा. ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी आप उसको जल्दी से गुड्स दे सकोगे. समटाइम इट हैपन्स के यू डोंट हैव द सप्लाई और यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर गुड्स स्टॉक, सो यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द दैट होलसेलर. और समटाइम्स आपके पास नहीं है तो आप होलसेलर से मंगवाते हो, विल टेक टाइम. सो ज़्यादा टाइम ना लगे, प्रॉम्प्टली आपके तरफ ये पहुंच जाए, ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा. और मोस्टली द सर्विसेज मस्ट बी एट द गुड पॉइंट, दैट इज लोअर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और बेटर सर्विसेज. ओके, इन द सेंस ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, इन द सेंस ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, उसमें आपको सर्विस देनी पड़ेगी, बाकी कस्टमर आपका मूव हो जाएगा. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू proper means of communication has become essential for business units. So when you want to give some of the information to others, right, or simply
you have to or you want to give some of the information to your clients, customers और जो भी आने वाले लोग हैं, सबसे आपका कम्युनिकेशन जो भी है वो प्रॉपर होना चाहिए और उसके लिए प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके जो भी टूल्स है, उसके जो भी साधन है, उसके लिए जो भी सपोर्टेड चीज़ है, वो सब आपके पास होनी चाहिए। यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दैट वन। तो यहाँ से हमारा कम्युनिकेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ओके, तो ये सब तो बराबर है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट कब होगा? प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज देयर, इट इज रिक्वायर्ड और वी कैन से इट बिकम एसेंशियल फॉर बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। ऑल्सो ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस फॉर द ट्रांजेक्शन्स बिटवीन यूनिट्स एंड विद द कस्टमर्स। तो ये तो डायरेक्टली हम सेल करते हैं, हम ऐसा बोलते हैं, बाकी वी डोंट नो एक्चुअली कि अमेजोन कहाँ से गुड्स लाता है और हमें कैसे देता है, वी डोंट नो एक्चुअली। मुझे और आपको ये कुछ नहीं मालूम है, राइट। इंडियन मार्केट का गुड्स जो उनके पास है, जो कॉमोडिटीज है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स है, वो डायरेक्टली हमारे पास कैसे आती है? हम जानते हैं कि हमारे घर पे बंदा है, हमने दिया, पैसे दिए, सीओडी है, कैश ऑन डिलीवरी है, पैसे दिए और सब कुछ हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो चीज़ है एक्चुअल हमने मंगाई थी वही है, अगर हाँ यही है और वही है, सो वो फिर अमेजोन कहाँ से लाया? डायरेक्टली प्रोड्यूसर से लाया, डायरेक्टली अमेजन ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वॉट एवर, वी डोंट नो एक्चुअली द सिस्टम ऑफ दिस ई कॉमर्स। हाँ, लेकिन उसके डिटेल में जाओगे तो सब आपको मालूम पड़ेगा। हम तो यहाँ बैठे हैं कॉन्सेप्ट लेने के लिए, हम तो यहाँ बैठे हैं कि किससे और किस किस अलग अलग चीज़ों से ई कॉमर्स हो सकता है। तो ई कॉमर्स हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनटू कम इनटू एक्जिस्टेंस फॉर द ट्रांजेक्शन्स बिटवीन यूनिट्स, दैट इज द बिजनेस यूनिट्स एंड ऑल्सो द कस्टमर्स। उसके बीच में ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स करवाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसको बोला जाता है। और कॉमर्स आपको मालूम है, अगर ई निकाल दो तो यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, राइट, आपको मालूम है, ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्विसेज। तो अगर ई लगा दो दैट ऑक्सिलरी सर्विसेज, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सो फर्दर थर्ड पॉइंट ये वाला आउटसोर्सिंग has also become necessary for a smooth operation of internal transaction of business। तो आपके जो मेन काम करना है आपको, स्मूथली आप कर सको, इसलिए हम जो आउटसाइडर वर्क है वो किसी और को देते हैं। यहाँ पर आउटसोर्सिंग आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन याद रखना आउटसोर्सिंग मीन्स यू वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर वर्क ऑन द पर्टिकुलर मेन वर्क। आपको आपका काम ज़्यादा भी करना है और मेन वर्क पर कॉन्सेंट्रेट करता है, तो जो मेन वर्क नहीं है, जो एक्सटर्नल वर्क है, जो दूसरों से हो सकता है, उसको आप बाहर दे दो, आउटसोर्स कर दो, किसी को काम करने के लिए दे दो, यही चीज़ है। तो ये था एक इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, कई छोटे बहुत क्वेश्चन है कि कौन कौन से एलिमेंट्स को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी, तो उसको भी ध्यान रखना। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट अंडर द आफ्टर द इंट्रोडक्शन एंड अंडर कम्युनिकेशन। सो स्टार्ट विद द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहले जो मीनिंग स्टार्ट होगा, बहुत ध्यान से समझ लेना, यही चीज़ नेक्स्ट ईयर फिर से रिपीट होगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वहाँ मैनेजमेंट के लिए रिलेटेड है, तो ये क्लियर होगा तभी वह क्लियर होगा। और आई ऑलरेडी गिव द इन्फॉर्मेशन टू यू दैट 11 and 12 बोथ आर कनेक्टेड, बट सम ऑफ द थियरीज आर क्वाइट डिफरेंट। इफ द बेस ऑफ द 11th is there, then you can easily understand the 12th, but both the things are different. Here the commerce is there, in next year 12th the management will be there. The organization of commerce and organization of management, both things are different, but concept must be clear. चलो, meaning communication is made of 2 Latin words। ये जो communication है वो 2 Latin words से बना हुआ है। पहला है communis and दूसरा है communicare। तो when the communication word is there, keep in mind it is from the Latin word, और हम Latin, ग्रीक, राइट, ये सभी को मोस्टली फॉलो करते हैं। सो लेटिन वर्ड्स कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। द मीन्स टू शेयर कॉमन, यानी जब ये कम्युनिकेयर या कम्युनिस वर्ड आता है लेटिन वर्ड, उसका मतलब द मीनिंग ऑफ दिस कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर, बारी बारी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में मुझे उतारना है। कम्युनिकेयर एंड कम्युनिस, उसका मतलब होता है टू शेयर कॉमन। शेयर कॉमन, अब शेयरिंग क्या है आपको मालूम है, तो कॉमनली आप उसको शेयर करो, टू शेयर कॉमन। तो ग्रेजुअली द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बीन चेंज्ड एंड नाउअडेज इट्स मीनिंग हैज़ बिकम वाइडर। अभी तो बहुत आगे निकल गए हैं, तो ये कम्युनिकेशन के लिए तो हमने बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, आपके पास भी शायद कम्युनिकेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, फिर भी वाइडर हो रहा है अभी तो। द प्रिमिटिव मैन यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके पास कुछ नॉलेज ही नहीं था, राइट, वो पत्थरों से काम करता था, वो एक प्रिमिटिव एरा में जी रहा था। सो दैट मैन, दैट प्रिमिटिव मैन, इसको प्राइमिटिव बोलते हैं कई, वॉट एवर, प्रिमिटिव मैन
यूज्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो कुछ बोलता नहीं था, उसके पास जो था वो नॉन वर्बल था. दे डोंट हैव, दैट पर्सन और दैट मैन डोंट हैव दैट टाइप ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन स्किल. सो वो यूज करता था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. किससे? थ्रू द साइन एंड एक्सप्रेशंस. हम बोले कि ये कितने हैं, तो फिर एक है ना, 2 3 4 5, दिस इज Mukko. Mostly we are using this one, punch. Okay, so see, these are the common things. ये thumb, अब ये सब बोलते हैं. तो look after this one कि ये हमें अभी मालूम है, लेकिन ये सब साइंस एक्सप्रेशन पहले भी होते थे, जो हम अलग अलग प्रकार के साइन देते हैं और एक्सप्रेशन वही प्रिमिटिव एरा में स्टार्ट हुआ था. तो इनके पास वर्ड्स नहीं थे, दैट्स व्हाई दे वर यूज और दे वर यूजिंग एट दैट टाइम डिफरेंट साइंस एंड एक्सप्रेशंस. आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ? लैंग्वेज हैज डायलेक्ट वॉज यूज्ड इन कम्युनिकेशन. लैंग्वेजेस आ गई ना. 10th में आप 4th चैप्टर में सीख चुके हो दैट लिटरेचर में कि कई अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस है जो लिटरेचर में यूज होती है, कैसे कैसे सब पर्टिकुलरली बाहर आई. सो दैट लैंग्वेज एज डायलेक्ट वॉज यूज्ड इन कम्युनिकेशन. धीरे धीरे उसका हम यूज करते हैं, भाषा की एक ज्ञान જે આપણે કહીએ છીએ. So as a result of the development of science and technology with the help of language and science, साइंस यहाँ पर साइन यानी कि एक पर्टिकुलर चिन्ह जिसको हम बोलते हैं, कम्युनिकेशन हैज बिकम फास्टर एंड इजी थ्रू वेरियस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन. सो इन प्रिमिटिव एरिया, इसको मैं कंक्लूड करता हूँ सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर. लेकिन ये जो प्रिमिटिव मैन था वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करता था. उसके पास नो एनी टाइप ऑफ द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्सप्रेशंस. तो वो कुछ दिखाता था, कुछ एक्सप्रेस करता था. लैंग्वेज नहीं थी उसके पास, ऑलवेज यूजिंग दैट साइन. Okay, then after languages find out, science and technology arise. Okay, and languages are there, science expressions were included in the communication, so that will become faster. Means at that time and also still today communication is very faster than the others. Okay, so become faster and easy through the various media of communication. We have now lots of medias are there for the communication. लेकिन पहले आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि communication क्या है. कुछ एक्सप्रेस करना, कुछ बताना, कुछ पूछना, कुछ कहना, कुछ समझाना, डिपेंड्स ना. देखते हैं क्या है आगे आगे. कम्युनिकेशन इज अ 2-way प्रोसेस. याद रखना, अंडरलाइन कर लेना. मैं अकेला बोलता रहूँगा. सो मैं सिंपल है ना, आई एम अ टीचर. हम तो यहाँ अभी फेस टू फेस नहीं मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पैंडेमिक. लेकिन जब हम यही चीज़ फेस टू फेस करेंगे तो 2-way का प्रोसेस होगा. सो दैट इज कम्युनिकेशन ना. मैं कुछ बोलता हूँ, आप कुछ सुनते हो, आप कुछ पूछते हो, मैं कुछ सुनता हूँ, मैं कुछ पूछता हूँ, आप आंसर देते हो, आप कुछ पूछते हो, मैं आंसर देता हूँ. दैट इज अ 2-way प्रोसेस. तो लाइक दैट हियर ऑल्सो कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन ही है. मैं पूछूँ और आप जवाब दो, दैट इज कम्युनिकेशन, राइट. लेकिन वो 2-way प्रोसेस होना चाहिए. मैं जो अभी दे रहा हूँ दैट इज लेक्चर मेथड. ओके, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो, कुछ नोट्स मंगवा रहा हूँ, आप दे रहे हो, दैट्स ऑल. इसमें हम सामने सामने कुछ नहीं करें बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द वीडियो रिकॉर्डिंग और दैट पर्टिकुलर सेशंस. उसमें हमें टाइम मिलता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट टाइम लिमिट्स, ओके, हम ज़्यादा उसको नहीं खींच सकते. सो कम्युनिकेशन क्या है? 2-way प्रोसेस है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स टू द टारगेट. तो हियर मैं सोर्स हूँ और मेरा टारगेट है स्टूडेंट्स इन द सेंस ऑफ द गिविंग द एजुकेशन. सो ये जो पर्टिकुलर 2-way प्रोसेस है कैसे स्टार्ट होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन. आई एम सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू यू, राइट. कहाँ से? आई एम अ सोर्स. मैं सोर्स हूँ एंड आई एम गिविंग इंफॉर्मेशन टू यू, यानी टू द स्टूडेंट्स, यानी यू आर द टारगेट. सो समटाइम्स इट हैपन्स के सोर्स एंड टारगेट्स आर ऑलवेज देयर एंड इट इज रिक्वायर्ड. दैट्स व्हाई इट इज 2-way प्रोसेस. So as a source, I am providing the all type of the information related to your studies, and you are the target. You are achieving that. You are achieving the information, na? So that is source and target. So in this process, the sender first collects information in proper form, and then sends it via medium or channel. So for example, I am a source. Right, I am a person, I want to give the information, I am a sender. So I will send the information to you, but firstly I will collect the information in a proper form, and then after I will send to you via medium or channel. So मेरे पास जो information है उसको properly बना लूँगा, then after I will send to you. Directly मैं roughly दूंगा तो maybe you are not able to get in a proper way. यही information मैं कागज में
सॉरी कागज में लिख के दे दूं, सो मे बी यू विल नॉट गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, यू हैव टू लुक आफ्टर दैट थिंग्स विच यू आर एबल टू एक्सेप्ट इट. हमने आपको ये बुक दी है इसीलिए दिया कि हम शायद कुछ बोलते हैं, हम कहाँ पर है आपको मालूम पड़े. सो दैट इज द प्रॉपर थिंग. ये बहुत कंप्लीट एंड प्रॉपर फॉर्म है, आपके पास आ गया है. चलो मैंने नहीं बनाया लेकिन बोर्ड ने बनाया, तो ये ऐसा ही कुछ मैं बना के आपके दे दूँ और उसके बाद उसको डिस्कशन करूँ, तो इट विल बी इन द प्रॉपर फॉर्म. सो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करूंगा इन प्रॉपर फॉर्म एंड देन आई विल सेंड टू यू थ्रू द मीडियम और चैनल. मैं आपके तरफ वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करूंगा कोई मीडियम या कोई चैनल के थ्रू. से व्हाट्सअप बोल सकते हैं ना, गूगल क्लासरूम, टेलीफोन, जूम सेशन, राइट, मीट सेशन, ओके, वेबएक्स, सिस्को, कोई भी आप ले लो, कोई भी एक प्लेटफॉर्म ले लो, उससे मैं आपको इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ. अच्छा, यूट्यूब मैं आपको डायरेक्टली चैनल इन द सेंस ऑफ ये चैनल वो नहीं है, समझते हो, चैनल यानी सिंपली थ्रू द वन पर्सन टू अदर टू थर्ड, यानी थ्रू द मीडियम और चैनल. और मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको कुछ दे सकता हूँ, तो कोई ऐप के थ्रू आपको दे सकता हूँ. ये एज अ टीचर मैं आपको बोल रहा हूँ. फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है, मैं मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकता हूँ, डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, लैंडलाइन का यूज़ कर सकता हूँ, वॉट एवर. नाउ रिसीवर क्या करेगा, द रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट्स द मैसेज एंड रिस्पॉन्स. सो वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इज देयर फ्रॉम माई साइड टू यू, तो यू विल इंटरप्रेट दैट वन. आप उसका अर्थघटन करोगे इन द सेंस ऑफ योर रिक्वायरमेंट. आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से यू विल प्रिपेयर दैट टाइप ऑफ द पॉइंट्स अथवा तो इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन. यू विल पुट दैट इन अ प्रॉपर फॉर्म योर साइड, राइट. मैंने तो अपने फॉर्म से दे दिया आपको, लेकिन नाउ इट्स योर टाइम टू पुट इन अ प्रॉपर फॉर्म एंड इंटरप्रेट दैट वन. जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, मैंने प्रॉपर फॉर्म में ही दिया है, तो यू कैन इंटरप्रेट दैट वन, उसका अर्थघटन कर सकते हो. एंड देन आफ्टर वॉट एवर द मैसेज इज देयर और रिस्पॉन्स आर देयर, सो आप क्या करोगे, द रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट्स द मैसेज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द रिस्पॉन्स. तो वो मैसेज इंटरप्रेट करेगा और मैसेजेस कहना जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिस्पॉन्ड करेगा टू मी. थस इन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, concepts, emotions, feelings or instructions are exchanged between two or more person. A simplest, keep in mind, simplest meaning of the communication. So when the communication is there, information, कॉन्सेप्ट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास माहिती आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, कॉन्सेप्ट से, इमोशंस है, आई एम सो इमोशनल, फीलिंग्स, आई हैव सम ऑफ द फीलिंग्स, और आई एम गिविंग इंस्ट्रक्शंस that are exchange. तो मैं मेरी फीलिंग्स में मेरा ऑर्डर में मेरा इमोशंस में मेरा इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशन आप तक मैं फॉरवर्ड करता हूँ, एक्सचेंज करता हूँ बिटवीन टू और मोर पर्सन. मैं और आप, यहाँ आप मीन स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का ग्रुप है ना, यू आर नॉट अ इंडिविजुअल पर्सन. हाँ, स्टूडेंट्स आता है तो यू आर अ ग्रुप ऑफ द डिफरेंट स्टूडेंट. तो आप सभी को मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, दैट मीन्स इट इज फॉर द टू, बिटवीन टू और मोर person. That is the simplest. In communication, when messages are transmitted through words, that means or that is by use of language, it is known as verbal communication. So simple one more question, what is called verbal communication? When the communication, हमने ऊपर देख लिया कि we are exchanging feelings, instructions, orders, emotions, information, concept, different, आप कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हो. ये सब हम एक्सचेंज करते हैं between two or more persons. ये जब लिखित में होता है, right? So when the messages are transmitted through words, हमने उसको words में transmitted किया है, then it is called वर्बल कम्युनिकेशन है. सो अगर उसको हम ट्रांसमिटेड करते हैं थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज में वो ट्रांसमिटेड होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन. इन वर्बल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज इन रिटन और इन ओरल फॉर्म. ये भी दूसरा है, जब हम लैंग्वेज का यूज करके हम कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, सो इट नॉट मस्ट ऑल द टाइम इन अ रिटन फॉर्म. હું આવું છું, રાइट, आई एम कमिंग, આવી રહ્યો છું, right, whatever. So whenever this information is given, then if it is orally, then it is oral form, and if it is in written form, then it is written. So this verbal communication is in two forms, yani it will be in a written or oral
फॉर्म. मैं कुछ बोल के भी कह सकता हूँ और मैं कुछ लिख पे भी कह सकता हूँ. यानी simply it is a simple thing. If the important information is there, I will write down that on the paper. If the important information is not there, I will give you the information orally. Right? तो आपको बोल दूंगा. सब information important नहीं होती है. सब information maybe all the time important ही होती है. ऐसा भी होता है. Okay, so proper selection of words and their placement in the sentence is also important in verbal communication. So when you are giving some information to your students, यहाँ मैं आपका example दे रहा हूँ इसलिए, when you are giving some of the information to the other party यानी receiver, it must be in a proper form. Fillings, instructions, orders सब कुछ अंदर आ जाना चाहिए और it will be in the written or oral form. When you are using language, okay, so at that time words must be in a good प्लेस, यानी वर्ड्स को सेंटेंसेस में अच्छे से रखना है. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो थस स्पेसिफिक मीनिंग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेंटेंस. वाई दिस वर्ड्स आर देयर, वाई दिस रिक्वायर. हम क्यों उसे प्रॉपर मैनर में रखते हैं? बिकॉज वहां से कुछ सेंटेंस से कुछ निकल ना जाए. स्पेसिफिक मीनिंग मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड. उसको हम शॉर्ट में भी समझा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं. दैट्स वाई keep it short and sweet. Principles should be followed while creating a message. Underline करके रखना, ये important एग्जाम के लिए तो है ही, लेकिन in your life that it is also important. Whenever you are giving or pass on any of the information or whatever the information you want to pass, आप communication का कोई भी मीडिया यूज करो, चैनल यूज करो, कोई भी आपको कुछ बोलना है तो keep it short and sweet. अंडरलाइन करना, ये प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना है. शुड बी फॉलोड वाई क्रिएटिंग अ मैसेज. तो जब भी आप कोई मैसेज देते हो तो वो शॉर्ट एंड सिंपल मत याद रखना, शॉर्ट एंड स्वीट याद रखना है. किसी को बुरा भी ना लगे और वो समझ जाए. यही है इसका आंसर. कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट. द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड इजी टू अंडरस्टेंड. राइट, सिंपल है, सामने वाले को मालूम पड़ना चाहिए, ખબર પડવી જોઈએ કે તમે શું કહેવા માંગો છો. That is the main output of this particular sentence. So the message should be short and very easy manner to understand. So dear students, ये था मीनिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन. बहुत शॉर्ट एंड सिंपल था, मेरी लैंग्वेज में इजी टू अंडरस्टैंड था. आपको मालूम पड़ गया, फिर भी हम सेशन में देख चुके हैं. ओके, नाउ डेफिनेशन. Communication means exchange of thoughts, opinions and information through speech, writing और signs. ये एक सिंपल सा प्रोफेशनल डेफिनेशन कहा जा सकता है. क्यों? कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ थॉट्स. मैं अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, दैट इज एक्सचेंज. मैं जब रखना शुरू करूंगा तो मेरे थॉट्स आपके तक आ पहुंचे, दैट इज एक्सचेंज ऑफ थॉट्स. अच्छा, ओपिनियंस આવું કરીએ, મંતવ્ય જેને આપણે કહીએ છીએ. ओके, सो हम ऐसा बोलता है कि मैं क्या कहता हूँ, हम ऐसा कर सकते हैं, दैट इज ओपिनियन. इंफॉर्मेशन कुछ मैं आपको देता हूँ थ्रू द स्पीच, कुछ बोल के, राइटिंग इन रिटन फॉर्म और इन साइंस कुछ बता के, 2, 5, 7 जो भी आप बोलना हो वो. जैसे आप 5 ये रखो तो 5, ये रखो तो कुछ खाने, ऐसा करके हम बोलते हैं तो खाना खाने की, ये तो 2, 1 कुछ भी. सो कम्युनिकेशन इज important when the particular exchanges are done. So ये यानी exchanges के लिए ही communication होता है. तो exchange of this type of the thing, that is the first definition. Now let's move to the next one. Here it is. Communication means a process of exchange of information among people regarding knowledge, concept, understanding, emotions, feelings and opinions. यानी जब भी कम्युनिकेशन आता है तो वी आर लुकिंग आफ्टर ऑलवेज इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ हम एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो तो आपको मालूम पड़ गया. यानी इजीली यू कैन ट्रांसमिट और यू कैन ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, और अनदर साइड मोर देन 2 persons होने चाहिए. सो इट विल बी बिटवीन 2 or more persons. सो दैट इन्फॉर्मेशन अमंग पीपल रिगार्डिंग नॉलेज. किसके लिए आप ये कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं? सो टू प्रोवाइड टू गिव द नॉलेज, कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, उनको समझ में आना चाहिए, इमोशंस, फीलिंग्स एंड ओपिनियन. सो दीज आर डिफरेंट वर्ड्स. लेकिन ये सब वर्ड्स भले अलग अलग तौर से तरीके से दिए गए, लेकिन सबका मीनिंग एक ही होता है, लेकिन ये सब होना जरूरी है. ओके, सो द सेंडर सिलेक्ट्स प्रॉपर मीडिया विच अफेक्ट्स द रिसीवर एंड एज अ रिजल्ट हिज और हर बिहेवियर इज चेंज्ड एंड ऑल्सो अ रिलेशनशिप विथ हिम और हर इज एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन. सो व्हेन यू आर यूजिंग, ये सेंटेंस बहुत कुछ कहने जा रहा है. ये सेंटेंस
ना कि सिर्फ यहाँ के लिए ज़रूरी है, ये लाइफ के लिए भी ज़रूरी है. मैंने बोला कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट लाइक दैट. दिस पर्टिकुलर होल पैराग्राफ इज important. When the exchanging is done between two or more people, okay, feelings must be there. When you are giving some of the information to other, it must have some of the type of the power in that one. Also smoothness and feelings must be there. When I am giving information to you, strictly I am giving information to you, ये करना ही है. ओके, तो when the words are there ना, आपको मालूम पड़ गया कि सर यहाँ पर भार रख रहा है, करना ही है, यानी कि ये कुछ इम्पोर्टेंट है. So mostly this type of the information, yes, feelings are there. Beta suit you, what happened to you dear? And feelings are there, emotions are there, some of the opinions are there. समझ लेना हो, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है. So this type of the information is provided by the one person to the group of the people. So sender must have to select the proper communication medium, और वो सामने वालों को अफेक्ट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सअप में आप, दुनिया का कोई भी बंदा है 70% मैसेज नहीं पढ़ता है, कीप इन माइंड. तो वो वे है कि मैं आपके तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं. लेकिन अगर मैंने सिर्फ आपका ही ग्रुप रखा है सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए, दैट मीन्स द कम्युनिकेशन विच इज देयर फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई हम ग्रुप बनाते हैं ना. क्यों मैं पर्सनली मैसेज नहीं करता हूँ, जो पर्सनली पूछेगा उसको ही पर्सनली आंसर दिया जाएगा ना. लेकिन इफ यू वांट टू गिव इंफॉर्मेशन टू द ग्रुप ऑफ द पीपल, दैट ग्रुप्स आर इम्पोर्टेंट. तो हम ये करते भी है, आपके पास इंफॉर्मेशन आती भी है, सो दैट इज वर्थवाइल, उसमें कुछ है. ओके, सो रिसीवर को वो इफेक्ट करना चाहिए, उसको वो देखना चाहिए, राइट. एंड ऑल्सो एज अ रिजल्ट ये क्या होगा आफ्टर दैट वन, केस और बिहेवियर इज चेंज. उसके बाद वो जानने, समझने, वो एक्सेप्ट करने के बाद उसमें कुछ चेंज आना चाहिए बाय एक्सेप्टिंग दैट इन्फॉर्मेशन. अगर वो कोई बिहेवियर चेंज है के लिए है, राइट, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए. सो एंड अ रिलेशनशिप विथ हिम और हर इज एस्टैब्लिश एंड मेंटेन. तो यू कैन मेंटेन देन फॉर longer time period, or also you can start the new type of the relation. Establishment of the relationship is required, और उसको मेंटेन करो बाद में. तो कब पॉसिबल होगा? when the information is in a proper manner. लास्ट डेफिनेशन बोला जाए, कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग our thoughts into others mind. Inducing means कुछ देना, right? Inducing means बढ़ाना, ज़्यादा करना. तो हमें हमारे जो थॉट्स है दूसरों के दिमाग में डालने हैं, हम यही तो करते हैं, right? Whatever the different type of the thoughts are there, must have to put into others mind. Motivators है ना, speakers है, right? संत है, कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के दिमाग में अपने थॉट्स डालते हैं. So communication is nothing, it's a process of inducing our thoughts into others mind. हमें क्या आता है वो सामने वाले को हमें बताना है by giving the information. So dear students, this is the end of the one and first portion of this chapter number 4, that is communication. यानी कि उसका पहला पड़ाव ही अभी हमने पास किया है. What is communication, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, और ऑल्सो स्टार्टिंग विद दैट बेसिक इन्फॉर्मेशन. अब इसके बाद आएगा इसका प्रोसेस, राइट. ये प्रोसेस क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे. एक पूरा प्रोसेस है जो आपको एक टेलीफोनिक बातचीत दो जनों के बीच में है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे. ज़रूरी नहीं है कि टेलीफोन से ही हो, लेकिन कई भी माध्यम से हो सकता है. लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर हमें एक टेलीफोन के माध्यम से दिया है कि मैसेज कैसे क्रिएट होता है और उसको कैसे आगे बढ़ाना जाता है, कैसे कैसे हम फॉर्मेशन किया है, कैसे उसका सिलेक्शन किया है, मैसेज कैसे सेंड किया है, सामने वाले ने कैसे मैसेज एक्सेप्ट किया, उसको इंटरप्रेट किया, और लास्टली उसने मैसेज का रिप्लाई किया. ये सब स्टेप्स को हम 1 by 1 देखेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर एक बस स्टेशन का पर्टिकुलर कम्युनिकेशन दिया है. सो आई विल गिव द इंफॉर्मेशन इन नेक्स्ट सेशन अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. तो आज हमने जो देखा उसको फिर एक बार देख लेना. ओके, ट्राई टू कंप्लीट योर नोट्स ऑन टाइम, उसको टाइम टू टाइम देते रहो. ओके, और ये जो मीनिंग में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है ना, विद दैट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट कम्युनिकेशन अदर थिंग्स, यू हैव टू राइट डाउन दैट वन एज अ पॉइंट. ओके, पॉइंट के हिसाब से उसको लिख देना. द रीज़न इज दैट कि आपके दिमाग में भी मुझे ये उतारना है, यानी आई वांट टू इंड्यूस माय थॉट्स इनटू योर्स माइंड, इनको योर माइंड, यानी वो ज़रूरी है कि आपके दिमाग में उतरना चाहिए. सो in next session I will start and complete that one. Don't forget you have to submit also chapter 3rd, right, exercise जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस
की थी. Okay, so that is the end of the session. Thank you very much. Have a nice day. Stay touch or stay in touch. Keep in mind that thing. अगर आप लोग, अब तो स्कूल भी शुरू होने को है, अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं रहते हो तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब पहली बार आप मिलते हैं तो आपके पास कुछ भी लिखा नहीं होता है, फिर हम स्टार्ट करवा दें तब हाफ चैप्टर्स कंप्लीट हो गया होता है, कई प्रॉब्लम्स होते हैं. दैट्स व्हाई आई एम कीप इन टच. ओके, ऑल्सो कभी भी कुछ भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.